screen. So see, we have talked right about configuration management concept right earlier also, right, and we see right the difference. We had able to right identify the difference between right configuration as a code and infrastructure as a code. I hope everyone right is able to right identify that. Is it or not? Yes. Okay. Now, what you see, what kind of approach this configuration management tool, right, takes? Take an example. If I just tell me, so for example, if I use a metaphor, right, and let's right understand in that way, right? If you are understanding the approach, right, that any configuration management tool uses. If I say you, right, you have to travel from Pune to Goa, right? Can anyone tell me, right, how you will do that? So what would be your right approach to reach Goa? So how you will do that? Anyone? Mm. It's very Roadways, train. okay. So when you will use train, right? This is one approach. Any other approach? Bus, train, or flight. Bus, train, flight, right? Three approaches. Beside that, anything else? Bike. Okay. So bike means you will be running the bike, right? Now, what is the difference between this? I'm segregating now. Bus, flight, and train one approach, and bike, right, one approach. Now, there are two different right ways. If you see, right, when we are saying right, these are nothing but public transports, right? And bike is someone individually, right, would be doing. Now, what you see right difference क्या होगा इसमें? आपको जाते वक्त क्या क्या प्लान करना पड़ेगा अगर बाइक से आप जा रहे हो तो? आपको क्या पता होना चाहिए? Route. रूट पता होना चाहिए, है ना, कि यहाँ से मुड़ना है, यहाँ से ये टर्न लेना है, ये जो भी है, राइट, यू विल अबाइड बाय सर्टेन रूट, वो नॉलेज आपको होना चाहिए. नो, दिस अप्रोच व्हेन यू आर ड्राइविंग वर्क इज कॉल्ड इम्पेरेटिव, नॉट इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव अप्रोच बेसिकली, करेक्ट. तो इम्पेरेटिव अप्रोच क्या हुआ? आपको एक एक इंस्ट्रक्शंस देने पड़ रहे हैं अपने आप को, है ना, तब जाके आप पहुंचोगे. लेकिन फ्लाइट, बस या रेंटेड कार, इसमें अगर आप जाओगे तो आपको क्या करना है? आप आराम से बैठोगे बस, राइट. The route and everything would be taken care by whom? Who is either a driver or who is right basically taking you. He will take care of that. Yes or no? So this approach is what? Declarative approach. आपने बता दिया अपने ड्राइवर को भाई मुझे गोवा जाना है, अब उसका काम है आपको गोवा पहुंचाना. तो जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल है ये डिक्लेरेटिव अप्रोच रखते हैं. Is that clear? What I mean to say about configuration management tool approach. Now to Yes. justify it, now to justify it, how you will say right? Say for example, Ansible is a right declarative approach. आप इसको कैसे justify करोगे? आपको एक इंस्टेंस बनाना है, ठीक है, जैसे हमने बनाया सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, तो आपने क्या किया? आपने एक मॉड्यूल यूज किया Ansible का, राइट? यस और नो? EC2 मॉड्यूल ना, और सिक्योरिटी ग्रुप के लिए एक सिक्योरिटी ग्रुप मॉड्यूल, ये यूज किया था हमने Ansible के प्रोविजनिंग लैब में. यस और नो गाइस? सुनना चाहता हूँ यस, क्योंकि हमने किया था लैब, करेक्ट. साइलेंस मींस नहीं किया था. Ah, yes, we are. किया था, राइट. तो ये सोचो कि ये जो मॉड्यूल है वो कोई नहीं, वो ड्राइवर है, राइट, जो कि आपको आपके एंड गोल पे लेके जा रहे हो. आपने बोल दिया और उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया. इन्फॉर्मेशन देने के बाद ना वो मॉड्यूल का काम है आपके लिए, राइट, क्रिएट करना जो भी चीजें चाहिए. तो ऑब्वियसली दिस टाइप ऑफ अप्रोच, राइट, डिक्लेरेटिव अप्रोच इन विच यू डोंट हैव टू राइट मच code, you use module which is pre-given, right, pre-given by the right tool itself, or whatever provisioning tool that you are using in terms if you talk about infrastructure as a code part. Now coming to Terraform, how Terraform thinks basically. Okay, now we will again use right approach in which right we will be planning something and then you will be right devising right ki kya hai. Now uh, take example, I want to open Amazon like right site. मेरे को Amazon की तरह right एक रिटेल साइट खोलना है, तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए होगा? एनीवन?
Your inputs would be much helpful, guys. Come and speak. Server on which the sites will be hosted. तो सर्वर तो बात की बात है ना सोनिया? सबसे पहले सर्वर कहीं होना चाहिए. सर्वर को कहाँ रखेंगे? Environment. Some data center ना. Basically when I say data center I need right a network. Correct? Now say मैं AWS में लॉन्च करना चाहता हूँ मेरे इस रिटेल साइट को. AWS राइट मेरा से प्रोवाइडर है या राइट मैं उसको एज अ मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर है, मैं उसको यूज करना चाहता हूँ. तो ऑब्वियसली मेरे को वहाँ पे अपना डाटा सेंटर चाहिए. तो मैं ऑब्वियसली सोचूंगा कि मेरे पास क्या हो, एक VPC हो, है ना. तो आई वांट टू हैव अ VPC, तो मुझे एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा. करेक्ट एवरीवन? तो नेटवर्क मुझे क्या देगा? Yes. मुझे बताएगा कि आपके पास इतने सारे IPs हैं, राइट. और जो भी आपने प्रोवाइडर लिया उसमें आपके ऊपर है आप कौन सा VM यूज करना चाहते हुए. बट आपके पास इतने सारे IP एलोकेट कर सकते हैं. राउटिंग राइट, सबनेटिंग जो भी है राइट, आप यहाँ पे बेसिकली डिफाइन करोगे. ऑब्वियसली जो VPC लिया तो आप बोलोगे ओके आई वांट टू have certain subnets, right? So you will decide subnets according to your need. Maybe you want right something called application subnet, database subnet, right? Entry subnet. Obviously they are having certain meaning ना. जब हम बोलते हैं entry subnet इसका मतलब they would be generally facing to the outer world, है ना. Application subnet could be facing to the outer world or maybe right in a private network because I don't want to expose my application. Similar with the database subnet, which will be more secured, right, in terms of right. Basically, it would be in private, right, subnet. I don't want to expose my right data to outer world. So obviously, I need subnets. So I want right a subnet to be created. Obviously, in if you have taken a subnet, obviously you have taken subnet to what? To launch VMs over it, right? So obviously you will be launching VMs, maybe right 10, 100, whatever, right? Whatever the network you have defined, and on that basis, right, you will be right creating. Obviously, this VM would be part of a subnet, right, which in a way, right, is also a part of VPC. है ना? True or not? It makes sense to everyone or not? Yep. अभी मैं VM में क्या करूंगा, अपना कोड डालूंगा, है ना. रिटेल का जो भी मेरा फ्रंट एंड कोड होगा जिसमें मैं लोगों को बोलूंगा मेरे पास ये प्रोडक्ट है, अगर आपको खरीदना है तो यहाँ से आप लॉगिन करो. उस हिसाब से मैं एप्लीकेशन अपने VM पे राइट जो भी होगा. ऑब्वियसली मेरे डेटाबेस होंगे, कुछ VM मेरे राइट एप्लीकेशन के होंगे, राइट. एंड देन राइट टू गिव यूजर दिस सर्विस आई नीड व्हाट, आई नीड लोड बैलेंसर मे बी, है ना. तो लोड बैलेंसर चाहिए होगा, फिर मैं दूंगा. बट think like that, right? When you started you cannot right start everything at one day, है ना. हर कुछ एक दिन पे तो नहीं होने वाला. अभी आप डे 0 है और आपने ये सोचा कि पहले तो मैं ये बनाऊंगा. तो ये जो आपने बनाया ये क्या है? एक तरह का, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है. यस और नो? ये एग्जिस्ट करता है? अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता, राइट. अभी हमने बस सोचा कि भाई ये चाहिए ना. इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है कि ये रियल वर्ल्ड में राइट एग्जिस्ट करे, तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? Plan. कोड करूंगा, है ना. इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड लिखना है ना. Stages. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड. नाउ वी विल राइट इसको हम टेराफॉर्म के साथ भी कोरिलेट करेंगे, क्योंकि मैं इसी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि उसका अप्रोच किस तरीके से. मैं कोड करूंगा, राइट. स्टार्ट करूंगा मेरा डे 0 का कोड में. मान लो मैंने यहाँ पे विल राइट डे 0 ऑल्सो. Okay, so day 0 I started writing my code. Obviously when I'm writing my code I have to keep some certain information. First of all, how I will connect to right AWS, right. And I should also know what resources that I want to create. That is what I want to provide. So obviously Terraform, while writing this code, right, segregate right itself as what
generally we say Terraform code there in a way of Terraform they represent as a Terraform config files. क्या बोलते हैं उनको? Terraform config files, because basically we are going to declare na, and we are writing our declaration in a config file. So that config file generally you will see like written as main.tf or right whatever application.tf, इस तरीके से आप उसका नाम दोगे. उसके अंदर क्या रहेगा, तो हम उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं Terraform config file को. And I will show you the architecture also a bit later, but first let's understand few terminologies that you should be aware of. So when we say Terraform config, I mean to say in the Terraform config, I should have providers defined. तो providers का जो category है वो Terraform ने कैसे बोला है? Terraform supporting multiple providers basically, right? And when I say provider would be infrastructure as a service provider, है ना? तो कोई example देगा मुझे infrastructure as a service provider कौन कौन से provider हो सकते हैं? Azure, Google. Okay, AWS. correct. So जो आपने बोला जैसे Azure, Google, AWS, these are what? Public cloud, right? Providers, है ना? उसी तरह हम on-prem right providers भी हो सकते हैं infrastructure के, जैसे कि VMware, है ना? OpenShift, right? Yes. So obviously Terraform supports them also. So in infrastructure provider, it provides both public and private clouds. Okay, so that you have to keep in mind. So that's what again the power of Terraform. Beside this is an infrastructure provider. We have platform as a service provider also. तो अभी मैं इसको अगर मैं ऐसे break कर दूं, तो अभी हमने infrastructure category ले लिया है कि infrastructure as a service provider. So these are the type of providers that I am writing. Okay. तो यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ IaaS, है ना, प्रोवाइडर जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, जैसे कि नेटवर्क, राइट, हार्डवेयर. तो इसमें क्या है, दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों को सपोर्ट करता है. समवन कैन म्यूट हिमसेल्फ, साकेत. सो पब्लिक स्लैश प्राइवेट cloud both. Similarly, they support platform as a service, right, as a provider also. Any good example anyone may be aware of as a pass? क्या support करता होगा Terraform? So very good example is what? Kubernetes. Kubernetes is what? A platform, है ना, over which I can do what? I can run my containerized application, right, or microservices based application. Because my application running in container, I want to manage them. And as a Terraform, right, can use Kubernetes as a provider and can use its resources. तो Kubernetes के resources क्या होंगे, right? वो हम जब Kubernetes पढ़ेंगे तब पता चलेगा. जैसे कि API server, right, control plane, etcd database, worker, right, container, you can say any runtime like Docker. These are nothing but the resources which you will play around, right, using the kubectl as a provider. So provider के पास वो सारे resources होंगे, वो resources को हम देखते हैं. तो अभी हम लोग ने provider की बात करें तो पास में हमें पता चल गया Kubernetes एक example है platform का. Now similarly, like platform as a service it supports, it also supports software as a service components. So obviously Terraform is very powerful, right? Can anyone give me an example of SaaS? कौन से SaaS support करता होगा या idea है किसी को? So for example, Datadog, okay, and we can say GitHub Enterprise. अगर मुझे ये सब right services provision करनी है, right, और इनको automate करना है तो मैं Terraform से कर सकता हूँ. So these are example. There are many other example that you can identify, right? For example, Fastly, which is a CDN, right, platform, is also supported by, right, Terraform. So again, it will come as an example of right, Fast. So
if I say, right, when Terraform started, right, I think when I was taking those numbers, right, 3 years back, though Terraform has come around 2011, 12. I'm just talking about 3 years back. The count was in hundreds, right? Now it has grown beyond, right, thousands. So many providers, right, the component including infrastructure, pass many, right, tools, right, which are there, right, is supported by Terraform, and therefore Terraform, right, thinking process is one tool solution, right, rather than including multiple tool in between. जैसे कि अगर मुझे एप्लीकेशन रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम जनरली इंक्लाइन होते हैं एनसिबल की तरफ, राइट, और प्रोविजन के लिए हम हो सकता है क्लाउड फॉर्मेशन, टेराफॉर्म और राइट एनी अदर प्रोविजनिंग टूल पे इंक्लाइन होते हैं. बट टेराफॉर्म बोलता है व्हाई आई कैन सपोर्ट बोथ low level and high level entities, right? Why not you use me rather than including one more tool, right, in your solution or design? You got my point, what I mean to say, guys? Yes or no? Yes, Deepak. Yeah. Now coming to provider, why Terraform config needs this provider? Obviously, if I want to do certain action, right, in that particular, right, area, I need, right, to get into that, right, I need to get logged in, or I need to, right, use their APIs and do or play with the resources. Until unless I am not have information of my provider how to connect with them, how I will, right, play with the resources, right, which is part of the providers. So obviously we need a provider information, so the Terraform can bring the actual, right, the code or connect, right, how it can connect to, right, that particular provider. Typical example, in Ansible, to connect to AWS, we need what? Access key and secret key, no? Which would be a role-based authentication to those access key, secret key on a time basis. कितने services access को allowed है. The same way, right, providers will need, when I'm using, say, AWS as a provider, then I have to specify how to connect to, right, this AWS provider. I have to specify in my config file, right, either using, right, secret key, or either using, right, AWS config uh, file which has been generated credential in certain location, right? So I have to define in that provider section in my Terraform config file that I'm going to use this AWS provider, and these are the details through which I will connect. We will see those configuration files soon. But understand, right, why I'm talking about provider. Okay. Now this since through provider I'm going to connect, and now I want to basically create VPC. So VPC, VM, subnet, these are nothing but what? A resource in AWS. So obviously I have to, in config file, I have to also define resources. So let me write here resources. So resources, I already gave you an example, right? Every provider would have their own resources. है ना? For example, if I say GitHub, right, enterprise, so वहाँ पे क्या resources होंगे? वहाँ पे होगा user, है ना, organization, repository. This would be what? The resources. So you have to think in that context. Provider is a bigger entity which is, right, actually, right, providing you the service, and those service are which you are using are nothing but the resources. Is this clear, guys? When I say what is a resource? Yes or no? Yes. So obviously in my Terraform config file I have to define also resources. Provider पहले बताया, फिर resources बताया. Now resources है, अब मुझे मान लो VPC create करना है, तो मुझे VPC create करने के लिए क्या क्या information चाहिए होगी? जनरल, अगर आप ने VPC का CIDR. CIDR चाहिए रहेगा, फिर आपको VPC के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, है ना, वो सब डिफाइन करने पड़ेंगे, राइट, Subnets. सबनेट्स डिफाइन, राउट टेबल्स, राइट, नेकल, दिस ऑल थिंग यू हैव टू डिफाइन. सो दिस आर ऑल नथिंग बट सर्टेन, राइट, दे विल नीड सर्टेन व्हाट वेरिएबल्स और डाटा, है ना, टू क्रिएट देम, कि क्या CIDR होना चाहिए. So obviously those are nothing but, right, you can, in resource you can use what? Use data sources. So data sources would be nothing but the values that you want to pass, right, for that particular resources. So obviously resource will use data source, and basically in terms of creating that particular VPC or VM or subnet. I hope now you can understand, right, that with the Terraform config what is provider and resources. Is that clear, guys? First of all, I want to understand, at least you are able to understand these entities initially. When we will jump into lab, obviously we will, right, see them. But अभी ये clear हुआ, provider resources के बीच में differences, what could be provider, what would be resources.
क्वेश्चन है कोई? VPC, VM, subnet, these are the resources, right? Correct. Those are resources, and these resources are part of which provider? Vishal? AWS. Yeah. In our scenario, it is AWS. Yeah. So you have to think, right, in a broader way, right? It's just an example through which we are learning, right? But if, for example, you will land up in a project where, right, you are using Terraform to automate Azure, so obviously Azure based resources you will be using, right? And your provider would be Azure. Okay. Similarly, if you're working, right, in an on-prem and your company is using, right, VMware, right, in their data center, and then you will be using, right, VMware as your provider, and whatever throwaway you are, right, creating your network or something, right, those resources you will be using. You got my point, guys? Now I think it's pretty clear. Okay. Now there is one more thing, right, which is also created. So that is called state file, basically. So mainly your code is the provider and resource, and state is, you can say, a kind of a byproduct. Okay, but that byproduct is very valuable. So can anyone tell me what would be the purpose of state file? Okay, Maintain the resource state. correct. In day zero, right? What could be the state file? Nothing, right? There is nothing there in the, right, you can say, in your you can say your in infrastructure that you want to use, there is nothing created. Obviously state file is nothing but what, basically the information about what you actually have in the real world. State file contains what you actually have in the real world. अगर आपने create किया है वो state file maintain करेगा अपने पास. Is this clear what I am saying? नहीं तो पूछ लो. अगर मान लो मैं कोड रन करता हूँ कोई, ठीक है, मान लो डे 0 पे मैंने ये डिजाइन किया और मैंने, राइट, इसको रन किया, बट रन करने से पहले एक चीज और कर लेते हैं तो उसे भी क्लियर होगा स्टेट वाइज. तो मैंने कोड लिखा पहला पॉइंट, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ और डे 0 पे डालता हूँ, ठीक है. ये हमारा फर्स्ट था. हमने डे 0 पे कोड स्टार्ट किया और वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी नीड टू कोड. वी नीड टू कोड, वी नीड टू राइट प्रोवाइडर, वी नीड टू write resources, and currently we do not have any state file since we are at day 0, so we are having no state, right? So there is no state file. Now I did a Terraform plan. तो कोड के बाद क्या करते हैं हम लोग? Plan. So what could be a plan? Can anyone tell me? What क्या are होगा the plan? resource we are going to create? Or So typically I would say, in a very, right, layman word, it is kind of a dry run. Okay, and in this dry run it gives you information that what you are going to do, what you are going to achieve at the end goal. So obviously plan also do what? A refresh. Plan क्या करेगा? Refresh करेगा. Refresh किसके साथ करेगा? आपके एग्जिस्टिंग जो रियल वर्ल्ड है उस पे वो जाके ढूंढेगा, राइट, कि भाई क्या है अभी. तो रिफ्रेश इज बेसिकली checking real world and comparing with the desired state. ये जो मैं लिख रहा हूँ, राइट, इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, ठीक है. तो रिफ्रेश मतलब रिफ्रेश पहले क्या करेगा, जाके देखेगा कि रियल वर्ल्ड में क्या है. डे 0 में रियल वर्ल्ड में क्या बोलेगा, वहां पे कुछ भी नहीं है. और मेरा डिजायर स्टेट क्या है, मैंने जब कोड लिखा था मैंने कोड में रिसोर्सेस में डिफाइन किया कि मुझे वीपीसी बनाना है, वीएम बनाना है, सबनेट. तो ये बोलेगा कि डिजायर स्टेट में मेरे को क्रिएट करना है. तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू राइट ऐड, राइट. आफ्टर दैट इट विल से, राइट, प्लान विल से दैट आई एम गोइंग टू ऐड create, I will write create VPC subnet and VM. ठीक है. तो प्लान से ये बोला कि ये क्रिएट होने वाला है, गोइंग टू क्रिएट, नॉट ओनली क्रिएट कहीं और होगा, राइट. इट विल बी, राइट, गोइंग टू क्रिएट.
तो एक काइंड ऑफ अ ड्राई रन विच सेज चेक्स कि कुछ नया तो नहीं है, कुछ पहले से एग्जिस्ट करता है और मैं उसके ऊपर कुछ बना रहा हूँ, वो आइडेंटिफाई डिफरेंस आइडेंटिफाई करेगा और उस हिसाब से बताएगा कि ये चीजें होने वाली है. तो दैट इज व्हाट प्लान डज. इट डज रिफ्रेश एंड obviously as per that it will generate a state file, or it will use state file to understand, right, what is there in the real world and what I am right in my code is, what is the difference between them. तो वो निकाल के वो बताएगा कि मैं ये करने वाला हूँ. Once right you got your plan and you say right I am okay, मेरे को लग रहा है plan मेरा सही है, right, then you go for what, उसको आप apply बोल लो या execute बोल लो, ठीक है, ये फेज में जाते हो. तो अप्लाई एग्जीक्यूट में क्या होगा, ऑब्वियसली आप रन करोगे, आपका जो भी टेराफॉर्म कॉन्फ़िग फाइल में जो चीजें लिखी हुई हैं वो नहीं है, प्लान ने बोला है वो क्रिएट, तो इट इज गोइंग टू क्रिएट देम. सो इट विल क्रिएट व्हाट, क्रिएट अ वीपीसी सबनेट एंड वीएम्स, ये बनाएगा आपके लिए, है ना. नाउ ये तो ठीक हुआ, ये हमें समझ में आ गया कि अप्लाई फेज में राइट ये क्रिएट कर देगा. नाउ लेट्स कम टू डे 1. डे 0 में राइट आपने 3 चीज प्रोविजन कर डाली, बना डाली. नाउ डे 1 में जब आए तब आपने बोला नहीं अभी तो ये चीजें बन गई हैं, अब मेरे को नया टास्क मिला है और आई एम गोइंग टू राइट implement that. So I want to attach say a load balancer. Okay, and obviously there I need a CDN also, so through that user would be right accessing right my application. तो एक CDN रहेगा और load balancer and you define right so the connections between VM and load balancers. Obviously there would be requirement of security group, creating right, you will also need a security group, right, which right would be part of both VMs and your load balancer. Okay, and yes there would be a connection between these two also. Okay, now अभी अब जब डे 1 में आए तो डे 1 में अब क्या चीजें आ गई, नहीं कौन सी 3 चीजें आ गई गाइस, क्या क्या और प्रोविजन करना है अब, Security group, load balancer, and CDN. CDN. ठीक है, नाउ लेट्स गो विद दिस. कोड पार्ट में क्या होगा, आप कहाँ पे जाके चेंजेस करोगे, config में resources में जाके चेंज करोगे, राइट. Since you have executed there would be a state file already created with the last run. Yes. Right, now you have added 3 new components. Now when you will plan after making these 3 changes in your code, right, and when you plan what will happen, refresh करेगा state file में कौन सा state है, पुराना वाला VPC subnet VM वाला, और अब कोड में क्या आ गया 3 चीज, तो obviously जब रिफ्रेश करेगा तो रियल वर्ल्ड और डिजायर स्टेट में चेंज आएगा, Yes. राइट. तो डिजायर्ड में नए चीजें हैं और रियल वर्ल्ड में कम चीजें हैं, करेक्ट. तो प्लान बोलेगा ओके सो दिस ऑल 3 न्यू चेंजेस वुड हैपन. तो कहाँ से पता चल रहा है, स्टेट फाइल से उसको पता चला. स्टेट फाइल में एक्चुअली आपने कैप्चर करके रखा है रियल वर्ल्ड को, और जब आप कोड करते हो तो आप अपना डिजायर स्टेट लिख रहे हो, एंड नाउ यू वांट योर डिजायर स्टेट टू बी रियल वर्ल्ड, then you will do what, then you will do again apply and execute, and after that it will create what, security group, load balancer and CDN. It will not, you can say change anything or recreate VPC subnet or VM which is already created until unless you have done any modification to it. You got my point, Yes. everyone. So this is the standard way, right, the Terraform would be looking into things. Okay, hello everyone. रिफ्रेश वाला एक बार फिर से बता देना. Okay, refresh is basically comparing between the desired state and real world. ठीक है, तो आपका desired state क्या रहेगा, अगर आपने कुछ मॉडिफाई किया है मान लो, तो आप कहाँ पे चेंज करोगे, कोड पे. तो कोड विल बी कंटेनिंग व्हाट, योर डिजायर स्टेट, जो कोड में वही आपको चाहिए आपके प्रोडक्शन या जो भी एनवायरनमेंट में आपको डालना है, करेक्ट.
जो आपके कोड में है वो आपका एक्सपेक्टेशन है ना, कहाँ पे होना चाहिए, रियल वर्ल्ड में भी होना चाहिए, क्योंकि आपने कोड लिखा है, आप ये चाहते हैं इसलिए कभी कोड लिखा है। बट जरूरी नहीं है ना कि आपका डिजायर स्टेट और रियल वर्ल्ड मैच करे, क्योंकि रियल वर्ल्ड पहले से कुछ है और आप नया चेंजेस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली देयर वुड बी डिफरेंस बिटवीन रियल वर्ल्ड एंड डिजायर्ड स्टेट, करेक्ट? Yes. And Yes. when you say there is a difference, it means you want to implement something, therefore you are write something and your desired state has changed, and you have to apply, you have to run your desired state to make it a real world entity ना। तो ये जो रिफ्रेश है वो क्या करता है, कंपेयर करके चेक करता है कि क्या है और क्या नहीं है, तो जिससे पता चलेगा यूजर को कि मैं अभी नया क्या चेंजेस करने वाला हूँ, so that he can take a decision, right, whether what I am doing is correct or wrong. Okay. Yes, Deepak. Okay, now coming to architecture. Okay, first of all, there is a Terraform core. Okay, there is what? Terraform core. So Terraform core is written entirely in which language? Go language, which is abstract for you. You are not going to write learn Go. आपको Terraform core को नहीं समझना। Terraform core already किसी ने develop कर दिया आपके लिए, आप उसकी बाइनरी यूज करते हो, तो आप जनरली Terraform core, ये जो कोड लिखा है वो क्या है, इसके पास सारी राइट चीजें हैं कि एज पर योर कॉन्फ़िग फाइल इट कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपने अपने इस पे लिखा है कॉन्फ़िग फाइल में AWS एज अ प्रोवाइडर, तो ये Terraform को समझ जाएगा, ओके अगर कीवर्ड प्रोवाइडर AWS है तो मुझे आपको AWS के सारे API लाके देने हैं, तो वो क्या करेगा आपके लिए, वो डाउनलोड करके लाके आपके सिस्टम पे रख देगा, सो दैट राइट AWS के जितने भी सर्विस APIs हैं आप यूज कर सको। ठीक है, तो ऑब्वियसली Terraform core is actually attached to providers. There could be multiple providers. Okay, and SaaS provider. Okay, so obviously this is but basically connected to all this Terraform core, right, is already उन्होंने क्या किया, उनके साथ जाके इंटीग्रेशन कर लिया है, तो आपको ये जो इंटीग्रेशन का हेडेक है वो है ही नहीं। आप you are just using right the module and the keywords in your DSL, and I will come to it. तो Terraform core के पास already इन सब के साथ integration है, right, and there are multiple infrastructure providers, PaaS providers and right SaaS providers. Now at the backend side where right basically infrastructure as a code writer, or you can say engineer, right, who will be dealing with, right, will need a Terraform core in its system, and obviously he has to define what his Terraform config files, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा, Terraform config फाइल। तो ये कौन सा डिक्लेरेटिव लैंग्वेज यूज करता है, एनीवन? जो Terraform config है आप किस लैंग्वेज में लिखते हो, एनीवन, एनी अवेयरनेस? Terraform, Terraform किस कंपनी का प्रोडक्ट है, किस HashiCorp. कंपनी? HashiCorp। तो ये जो DSL है उसका नाम भी HashiCorp लैंग्वेज है, जिसको बोलते हैं HCL, ठीक है। तो HCL इज द योर DSL, and using this right declarative language you generally write Terraform config file, ठीक है, Terraform config. Now you, with this Terraform config file you need what, another important entity which we call what, state file, है ना। तो obviously Terraform core को state file चाहिए होगा, तभी तो compare कर पाएगा ना, आपका कोड और स्टेट फाइल के बीच में कंपैरिजन करेगा। बट स्टेट फाइल का जो इन्फॉर्मेशन है Terraform कहाँ से लाके देगा, जब आपने लास्ट टाइम रन किया उस प्रोवाइडर से कनेक्ट करके क्या क्या एंटिटी बनाई, वो जाके एक स्टेट फाइल क्रिएट कर देगा आपके लिए, राइट। और Terraform config में जब कोड में चेंज करोगे तो आपके पास एक स्टेट फाइल पड़ा हुआ है, और इस स्टेट फाइल से आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। इज दिस क्लियर? ऑब्वियसली this will be consumed by Terraform core, and obviously state file also will be consumed
by Terraform. So it would mainly bi-directional, right? Not a single direction. So Terraform core would be using your config file and state file to interact with what infrastructure provider, right? Whatever you have mentioned in your Terraform config file, which provider you have mentioned, and whatever the resources you have mentioned. So Terraform core, right, is going to deal with the resources and everything for you. Is this clear to everyone? Yes. Now, I have one question regarding state file, and think in terms of life cycle management, right? What you are doing, right? Maybe in your organization life cycle point of view. You would not be only one engineer, right? Who would be working, right, on Terraform code, right? Terraform config changes. There will be multiple people would be working on, right, making changes as per the ask or making the Terraform config file. Where you are going to run your code, Terraform core plan execute command, you will be running somewhere, right? Locally or in, right, some server. Yes or no? Yes. Now, see, parallel development is happening. So what will happen, right, with your desired state and state file? How you're going to, right, deal with this situation? क्योंकि state State file आप logs. अपना locally manage तो नहीं कर रहे हो, right? अगर state file locally manage करोगे तो क्या होगा? उसका अलग state file होगा, आपका अलग state file होगा, है ना? और जब अगली बार रन किया उसने कुछ अलग कोड चेंज कर दिया वहां पे, तो आपका स्टेट फाइल और जो रियल वर्ल्ड है मैच ही नहीं करेगा. तो जनरली क्या करते हैं हम लोग, स्टेट फाइल को सेंट्रल लोकेशन पे स्टोर करते हैं, राइट? सो एवरी टाइम, राइट, जो स्टेट फाइल रिफर हो, आपके लोकल स्टेट फाइल रिफर ना हो, कहाँ पे हो, जो आपके रिमोट पे लोकली कहीं सेंट्रली कहीं पे स्टोर किया हुआ है. तो जनरली हम ये स्टेट फाइल कैसे डिफाइन करते हैं? हम एक बैक अपने टेराफॉर्म कॉन्फ़िग में एक बैकएंड लिखते हैं, राइट? बैकएंड कंपोनेंट लिखते हैं, वहाँ पे मेंशन करते हैं कि कौन सा स्टेट फाइल यूज होगा. आई विल शो यू, राइट, that. But remember, this is very important, right, to understand about Terraform backend and its relation with the state file. So state file आपका desired state, राइट, और रियल वर्ल्ड के बीच का, राइट, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. स्टेट फाइल कंटेन्स व्हाट, योर रियल वर्ल्ड. एंड इफ it is not common for two different engineers, then obviously you will mess up, right, the thing which is actually in real world. तो वो चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा, या आपका टेराफॉर्म अप्लाई फेल होगा, वो बोलेगा कि भाई तुम्हारा मैच ही नहीं कर रहा स्टेट फाइल, वहाँ पे कुछ और है और तुम यहाँ पे कुछ और बोल रहे हो. गॉट माई पॉइंट गाइस? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यस और नो? नहीं समझ में आया स्टेट फाइल वाला? एक Come बार on. फिर से बता दीजिए। हाँ ठीक है, इसको दूसरे वे में बताता हूँ मैं. फॉर एग्जाम्पल, say Mayuri, right, is creating VPC, okay, uh, and she written a Terraform config file, and she, right, created the resource and everything, and right, created the resource, and VPC has been created, and whatever state file generated while executing for her, right, locally, which contain, right, VPC information. Now, your code, what Mayuri has written, the code, right, has been checked in Git, and say Mukul came and pulled that code, and right, over that he started writing, right, code changes for creating VMs, right, and other thing. Now he do not have the state file, right, because state file is locally with Mayuri. Now when he will start, right, running his code, already there is a VPC, right, created, and as per, right, the setup of Mukul, there is no VPC. Now there is a mismatch, right? There is a VPC and you are saying, right, create a VPC, but already VPC is existing, but as per your state file, there is no VPC existing. So obviously there is a mismatch and your apply will fail. So Mukul would be in a state, अरे मैं क्या करूँ, मेरा तो मैंने सही लिखा है सब कुछ लेकिन चल नहीं रहा है. तो प्रॉब्लम क्या है? आपके पास वो स्टेट फाइल नहीं है जो मयूरी ने रन किया था. यू शुड हैव, राइट, टेकन दैट स्टेट फाइल आल्सो, राइट, फ्रॉम हर, देन ओनली, राइट, थिंग्स वुड बी गुड. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, राइट, कि हर इंडिविजुअल अपने अपना स्टेट फाइल, राइट, सिंक अप करेगा बात करके. इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, राइट, इट विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू सम फेलियर. So rather than keeping, right, state file locally, I will say, right, we will have our state file in a common place. If I run my code, the state file will get updated in that common place.
If you make any changes, obviously you will be using right the common right one. So obviously there is a low chances, right, a certain kind of mismatch will happen. Now is it clear what I said? Yeah, Deepak. Yeah, that is where right Terraform backend for state file comes in picture. Okay, and it's a very basic concept, nothing right. It's not that very crucial or something which is very difficult. Okay. Okay, now I hope everyone had understood the basically the components and right in what context Terraform right comes in picture. So mainly it is a provisioning tool right with capability of configuring right high and low level resources categorized as infrastructure as a provider, platform as a service provider, or software as a service provider. So that is what right is the capability. It is similar to any configuration management tool capable of doing configuration management, deployment, and service orchestration. Okay, is it clear to everyone? कोई टेराफॉर्म के बारे में Yes. पूछेगा तो बता पाओगे ना कि वही प्रोवाइडर्स होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, टेराफॉर्म कॉन्फ़िग होता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड राइट कोड, प्लान एंड अप्लाई, 3 phases basically. Okay, now one thing which I missed is what day n. डे एन क्या होता है? और डूम्सडे, जब सब कुछ खत्म करना है राइट, अब हमारा प्रोजेक्ट स्क्रैच हो रहा है, तो हाउ टेराफॉर्म इज यूजफुल इन दैट कंटेक्स्ट? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड डिस्ट्रॉय फेज. या सो डिस्ट्रॉय फेज में क्या होगा? यू डोंट हैव टू टेक केयर. अब देखो एंसिबल में ये डिफिकल्टी है, एंसिबल में क्या, अगर आप क्लीन अप करने जाओगे तो यू माइट हैव टू राइट अनदर कोड फॉर क्लीनिंग अप, right, changing. But destroy phase in terraform is very easy. आप अगर terraform destroy command रन करोगे तो वो क्या देखेगा? आपका state file राइट जो पड़ा हुआ है, और जो जो चीजें आपने बनाई है वो सब चीजें एक बार में क्लीन कर देगा. सो ऑब्वियसली क्लीनिंग अप राइट becomes much easier right in terraform. You don't need to write extra code. As per the state file right, it understands what are the things that you have created need to be destroyed and you can destroy them. Okay. So day n is nothing but what? Destroy, and you are the Terraform is capable of doing that. है ना? अगर कोई कस्टमर आपका है, आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो और आपने उसके लिए सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दिया है, एट सर्टेन डे राइट द प्रोजेक्ट उनका मूव हो रहा है या हो रहा है, एंड राइट दे आस्क यू टू क्लीन अप, कि ये सब क्लीन अप करके दो. नाउ यू डोंट हैव टू राइट वर्क हार्ड राइट स्पेंड राइट योर रिसोर्सेज और टाइम to write another set of code to write delete or write manual deletion, whatever. You will avoid those right situation if you have used Terraform. You will just go and run Terraform destroy and it will right clean up everything without any overhead. Okay, now let's move to the lab part. So for lab, right, first of all we have to do installation of Terraform, which is very easy. So I will walk you through. So we are going to do right 2 labs, one right a VPC creation and another first the basic understanding, simple instance right creation and destroy kept whatever right the phases that are there, we have to do that. So let's go to my learning. Where is Terraform? So we will first do this provisioning lab, right? And I will walk you through this, and we will perform this. And right, right, time permits, we will be right doing that right VPC lab also. Now, if you see this, right, downloading and installing Terraform is much easier. So you have to go to Terraform page. It's cross-platform. You don't need right just like Ansible. It is not right. Can be it would require only right Unix variant of machine right for Ansible master to be installed. It is not like in that in Terraform. You can use your Windows machine also. Okay, so we will download right from the official download page. We will download right a zip file, and in that zip file there would be a Terraform binary, right? We will unzip it, and then right we will move the Terraform binary to right our path so that we can use it as like a normal command like move and other commands, right? We can use, and then we will check right using Terraform version. Latest Terraform command don't use minus capital V, it uses dash small version, right? It is old right Terraform installation instruction, but that's fine, it will work, but the checking version command will change.
Now AWS user creation, to create Terraform, we will be creating right a specific user through which we will be right interacting or connecting with our right as a provider. तो हम AWS में आके एक यूजर बनाएंगे और उस यूजर को हम परमिशन दे देंगे कि जो जो रिसोर्सेज यूज करना है. In our case we will give administrative right, but we can limit right our user to certain resources, and that resources are only right there in the Terraform config file. And after that we will do AWS configure right and set our credentials, and then we will define right our provider file. So this is here right the provider and resources stuff comes. So this is one approach in which I am defining also my variable file. मतलब मेरा variable file separate है. By default we can define variable in Terraform itself, right? तो Terraform का default variable tf भी रहता है, variables.tf. तो उसके लिए आपको source नहीं करना पड़ता. बट अगर मैं अलग से अपना एक वेरिएबल डॉट टी एफ वार्स बना रहा हूँ तो मुझे राइट कमांड रन करते वक्त टेराफॉर्म मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे को ये टी एफ वार्स यूज करना है. तो इसमें मैं डिफाइन कर रहा हूँ मेरे वेरिएबल्स की कौन से रीजन में मैं करने वाला हूँ, मेरा क्रेडेंशियल्स कहाँ पे स्टोर्ड है, राइट कौन सा प्रोफाइल यूज करो मेरे क्रेडेंशियल लेने के लिए AWS का, कौन सा की नेम इंस्टेंस को जाना चाहिए, और कौन सा AMI यूज करो इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए. तो वो मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन पास किए हैं. तो ये जो वेरिएबल टाइप्स हैं, जैसे कि ये जो वेरिएबल है ये काइंड ऑफ है हैश वेरिएबल है, राइट. इसमें मैं की वैल्यू पेयर से अपने राइट कीज और वैल्यू डिफाइन करता हूँ, लुकअप कर सकता हूँ कि यूएस ईस्ट 2 का निकालो या यूएस ईस्ट 1 का निकालो AMI. तो मैं उस तरीके से राइट इस तरह के वेरिएबल. तो जस्ट दिस एग्जांपल विल हेल्प यू right in terms of understanding different way of using variable. Now this is my main.tf which is I will call right my terraform config file main.tf. okay. इसमें मैंने देखो डिफाइन किया मेरा प्रोवाइडर. पहले तो वेरिएबल जो है ऊपर में है उनको सोर्स किया है उनका, बट मेरा इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है प्रोवाइडर. देखो इसमें प्रोवाइडर मैंने क्या बताया, क्या है मेरा प्रोवाइडर AWS, है ना. तो अभी टेराफॉर्म जब मैं कमांड रन करूंगा राइट टेराफॉर्म इनिट इनिशियलाइज करने के लिए, तो क्या करेगा देखेगा main.tf में प्रोवाइडर क्या है AWS, और वो क्या करेगा डाउनलोड करके लाके AWS के जितने भी जो API कनेक्ट करने के लिए उसका पूरा उठा के ला के रख देगा, सो दैट टेराफॉर्म कोर कैन यूज इट. मैंने उसको पास किया कि मेरे को AWS कनेक्ट करने के लिए ये रीजन और ये मेरा क्रेडेंशियल चाहिए जो मैंने डिफाइन किया वेरिएबल में, वो यूज करना है, और ये प्रोफाइल में मेरा क्रेडेंशियल है राइट एक्सेस की एंड सीक्रेट की. एंड देन आई एम राइटिंग अ रिसोर्स, एंड दिस इज राइट माय रिसोर्स नेम AWS जैसे मॉड्यूल नेम है राइट, वैसे ये एक मॉड्यूल नेम है, उसका एलियस है एथेंस लैब. मतलब मैं अगर कहीं और रेफर करूं तो मैं इसे एलियस से रेफर कर सकता हूं, मैं अपना एलियस नेम दे सकता हूं, जैसे AWS इंस्टेंस A, जैसे SQL क्वेरीज में हम करते हैं ना एलियस, सिमिलर वे मेरा मेन मॉड्यूल ये है AWS इंस्टेंस, उसका एलियस है. क्योंकि कई बार बड़े होते हैं तो मैं ऐसा नाम देता हूँ जो छोटा या मीनिंगफुल हो, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे एथेंस लैब्स लिख दिया. आई कुड राइट सिंपल AS AI whatever. नाउ AMI देखो यहाँ पे मैंने मेरे जो AMI वेरिएबल मैंने जो स्टोर किया है राइट उसको मैंने लुकअप किया है, और लुकअप करके राइट उसका किस रीजंस वेरिएबल जैसे US ईस्ट 1 है वो US ईस्ट 1 या US ईस्ट 2 का जो भी की है उसका वैल्यू निकाल के AMI इसको दे देगा. फिर ये मेरा की नेम हुआ, कौन सा मेरे को रिसोर्स इज नथिंग बट नीड सम सर्टेन डाटा राइट, वो डाटा मैंने इसको पास किया और वो डाटा से वो क्या करेगा इंस्टेंस क्रिएट करेगा. And this is what my basic provisioning right resource definition is, just to create an instance right in AWS using Terraform. And then these are the lab execution command. Terraform init get the necessary plugins of AWS right, which I told you. And then we will run our right the dry run which will be Terraform plan and this var files जो हम लोग use कर रहे हैं उसको plan को pass करेंगे, and Terraform apply to create, and then we will destroy right our instances. Right. So just for right our first basic understanding, this lab is very important to right to be executed. Everyone in the same page, guys? ये समझ में आया Yeah. मैं जो लैब को वॉक थ्रू किया, अब इसको हम करने वाले हैं. इसमें कोई क्वेरी क्वेश्चन? ओके नहीं, let's go to our AWS instance. I will create a new instance. कोई भी इंस्टेंस ले सकते हैं, बताओ कौन सा लेना है, रेड हैट या यूबंटू. क्रॉस प्लेटफॉर्म है, हम किसी में भी हम कर सकते हैं. रेड हैट ले लें, योर सजेशन गाइस. Red Hat. चलो रेड हैट ले लेते हैं. ठीक, किसी में भी चल जाएगा. आप आई वुड सजेस्ट जब आप लोग करो तो आप कोई और वेरिएंट यूज कर लेना, ठीक है, कोई चैलेंज नहीं आएगा इसमें. टिपिकली राइट सिंपल. मैं T2 माइक्रो ही ले रहा हूँ, ठीक है, और आई विल जस्ट मिनिमाइज इट. प्लीज लेट मी नो राइट अगर कोई ज्वाइन कर रहा है. रिव्यू एंड लॉन्च.
I'm using DevOps learning, so I will change my configuration accordingly. Launch instance. ठीक है, मशीन को आने दो. मीनवाइल हम क्या करते हैं, एक IAM में जाके वो यूजर क्रिएट कर लेते हैं ना, टेराफॉर्म जो इंस्ट्रक्शन था, इसका नाम दे देते हैं हम लोग टेराफॉर्म. ये इंस्टेंस नेम दे दिया मैंने, और यहाँ पे मैं यूजर्स में जाता हूँ. ये इंफ्रा यूजर्स को मैं डिलीट मार देता हूँ. और एक ऐड यूजर करता हूँ, इसका नाम देता हूँ टेराफॉर्म. ओके, और इसको सिर्फ प्रोग्रामेटिक एक्सेस देता हूँ मैं. नेक्स्ट परमिशन, और चाहूँ तो मैं ग्रुप में भी ऐड कर सकता हूँ, और उस ग्रुप को ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस है, बट आई विल अटैच एग्जिस्टिंग पॉलिसीज डायरेक्टली टू द से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस. नेक्स्ट टैग्स, नेक्स्ट रिव्यू, create user. Now this two information is important for me, so I will activities gedit, वहाँ पे मैं. एंड रिमेंबर गाइज, ये चीजें जो मैं आपको शो अभी डिस्प्ले कर रहा हूँ वो आपको किसी को नहीं देना है, शेयर नहीं करना है. आपके क्रेडेंशियल्स राइट सेफ रखने हैं, राइट ऑलवेज. राइट आई एम राइट नाउ से फॉर एग्जांपल आई एम वनरेबल, राइट. अगर कोई इसका मिसयूज करना चाहता है, राइट, मैं तो डिलीट करूंगा लैब के बाद, बट अगर कोई अभी मिसयूज करना चाहता है तो कर सकता है. तो बी अवेयर, डोंट शेयर दिस राइट क्रिटिकल इंफॉर्मेशन विद एवरीवन, एनीवन, राइट. चलो, लेट्स गो बैक टू इंस्टेंस एंड लॉग इन टू दैट इंस्टेंस. इसको पब्लिक आईपी मिल गया है, ठीक है. नाउ आई विल गो टू माय terminal, control alt T, yeah, then cd downloads, and ओके, ये इसमें हम आईपी डाल देते हैं जो अभी कॉपी किया है, ठीक है. परफेक्ट, ये लॉग इन हो गया हम लोग. अभी क्या करना है, टेराफॉर्म के साइट पे जाना है अपने को. टेराफॉर्म डाउनलोड करोगे, टेराफॉर्म के साइट से ही करना, वो ज़्यादा बेटर है. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है सब, मैक ओएस फ्री, राइट, लिनक्स. हम लोग क्या करेंगे, हमें लिनक्स पे करना है, तो हम ये लोग लिनक्स का 64 बिट है. इसको राइट क्लिक करो, कॉपी लिंक करो. लेट्स गो टू आवर इंस्टेंस. यहाँ पे wget है कि नहीं पहले देख लेते हैं. नहीं है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे sudo yum install -y wget. ओके, डन. सो नाउ वी विल wget, एंड जो मैंने यहाँ से URL कॉपी किया है टेराफॉर्म की साइट से, वो किया. ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो एक जिप फाइल आ गई, राइट, डॉट जिप. अब इसको अनजिप करना है. आई डोंट थिंक अनजिप है इनके पास, तो मेरे को अनजिप भी इंस्टॉल करना पड़ेगा. एंड देन विल अनजिप, ठीक है. Unzip, and then that's Terraform. Now you will see, right, we will get a Terraform binary. इसको हम कॉपी कर देते हैं, राइट, यूजर बिन में. sudo से करना पड़ेगा यूजर बिन.
मूव भी कर सकते थे राइट। अभी मेरा टेराफॉर्म मैंने यूजर बिट में डाल दिया है, तो मैं यहाँ पे अभी टेराफॉर्म डैश डैश वर्जन करूँगा, तो इज द राइट 1.00 वर्जन दिखा रहा है राइट वर्जन, मतलब अभी हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वही इसने राइट ला के दिया है। आई थिंक पहले 0.14 था, अभी इन लोग एकदम फर्स्ट वर्जन पे आ गया राइट, मतलब latest version. I hope we do not face any rate challenge, because this is a very latest version, and what we have done in 0.12 or 0.11 right version now, it is very latest. The last lab that I have performed around right 2 week ago, right, teaching one of batch. At that time, the latest version was 14, 15. So they're changing so fast. Now let's do our lab, right? So first of all, we will create our right एक folder बना देते हैं mkdir terraform project. Let's go inside it. Okay. यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, अभी हमें दो फाइल बनानी है, vi पहले तो AWS कॉन्फ़िगर भी करना है अपने को ना, वो भी कर लेते हैं यहीं पे रह के। AWS CLI भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, अब देखते हैं पाइथन है इसमें, पाइथन -V और पाइथन 3 भी नहीं है इसके पास, ऐसा कैसे? ls -ltr user bin पाइथन नहीं है, तो हम इंस्टॉल कर देते हैं पाइथन sudo yum install python 3 -y। क्योंकि अपने को AWS CLI इंस्टॉल करना है, तो हम लोग पाइथन करेंगे तो पिप भी हमें मिलेगा राइट, विच पिप, अरे माय बैड, पिप 3 आ गया, एंड देन राइट sudo pip 3 इंस्टॉल AWS CLI डाल रहा हूँ मैं, ओके विदाउट डैश, oh my bad, AWS CLI, तो मैंने AWS CLI डाल दिया। नाउ आई कैन रन राइट AWS कॉन्फ़िगर कमांड, तो मैं यहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो ये पूछ रहा है एक्सेस की आईडी है ना, तो एक्सेस की आईडी हमारा ये रहा, and then it will ask for access key, this is our access key, ठीक है। एंड रीजन ये क्या है, आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ठीक है, डिफॉल्ट आप ब्लैंक भी रखते हो, आपको रीजन नेम डालना तो डाल भी सकते हैं, जैसे US1 ना, US2 जो भी आपको रखना रख सकते हो, मैं इसको ब्लैंक रख रहा हूँ। और आउटपुट फॉर्मेट, जब आप AWS के CLI कमांड रन करते हो तो आउटपुट जनरेट होगा किस फॉर्मेट में जनरेट होगा, जेसन टेक्स्ट को, ये भी डिफॉल्ट रख सकते हो, मैं इसमें भी कुछ नहीं रखा। जब मैंने ये रन किया, इसकी एंट्री कहाँ जाती है, cat in your home directory there would be a folder called AWS, उस AWS के अंदर आपका credentials करके बनता है, तो इसमें जाती है। ओके, गिव मी 1 मिनट गाइस, तो ये कहाँ जाती है, इस फाइल के अंदर जाती है, क्रेडेंशियल्स के अंदर। इसके अंदर देखो ये प्रोफाइल मेरा क्या है, डिफॉल्ट, और इसके अंदर मेरा एक्सेस की आईडी जो मैंने अभी कॉन्फ़िगर किया वो इसके अंदर जाके स्टोर हो जाती है। क्लियर एवरीवन, एवरीवन क्लियर विद दिस इंफॉर्मेशन? Yes. नाउ लेट्स क्रिएट आवर एक्चुअल कॉन्फ़िग फाइल। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने कोड पे, और ये जो अपना वेरिएबल फाइल है ये बना लेते हैं, ठीक है, ये variables.tfs, just copying this, I will make change right as per, so vi variables.tfvars, the extension is just an extension right, just to say कि ये terraform का variables,
Now I'm copying. Okay. First of all, I'm using region 1, so I will change it to US East. My bad. ठीक है, अब शेयर क्रेडेंशियल अगर आपका यूबुंटू वाला इंस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, होम यूबुंटू होगा, ठीक है, होम EC2 यूजर की जगह आपको होम यूबुंटू लिखना पड़ेगा इधर, ठीक है, सिंस वी आर यूजिंग रेड हैट तो वी आर राइट इन सेम क्रेडेंशियल फाइल लोकेशन। प्रोफाइल हमारा डिफॉल्ट था जो हमने देखा, अभी यहाँ पे मेरा ये चेंज होगा, मेरा जो की है वो जनरली डेवऑप्स लर्निंग के करके की है, राइट, और ये जो की जो डालते हैं वो सेम रीजन में होना चाहिए गाइस, कहाँ होना चाहिए, सेम रीजन पे होना चाहिए। अगर US East 1 है तो US East 1 का की नेम होना चाहिए। सिमिलरली राइट वी कैन यूज डिफरेंट राइट रीजन्स, जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसमें एक और ऐड कर सकता हूँ या इसी को चेंज कर देता हूँ मैं, तो ये लुक का वेरिएबल है तो मल्टीपल की वैल्यूज हो सकते हैं। Why I'm doing, I'm in insert mode and I'm using replace US East 1 and I will write identify। सबसे पहले मैंने डेवऑप्स लर्निंग जो की है वो सही यूज किया है कि नहीं वो भी देख लेता हूँ, मेरे डैशबोर्ड पे जाता हूँ, कीज में जाता हूँ, spelling is finite DevOps learning and my code DevOps learning, yeah perfect। अभी मेरे को चाहिए था AMI राइट, तो मैं जाऊंगा इंस्टेंसेस में, लॉन्च इंस्टेंसेस में से आई वांट टू राइट इन राइट ubuntu का इंस्टेंस मेरे को बनाना है मान लो, तो मैं इसका AMI उठा लूंगा, जो भी जो आपको इमेज जिसका जिसको होस्ट करना है प्रोविजन करना है वो। दीपक, वो आपको कैसा पता चला कि वो जो अपना डेवऑप्स लर्निंग वाला जो की है वो सेम रीजन का ही है? हाँ ये बताता हूँ, इफ यू सी राइट आई एम इन विच रीजन, नॉर्थ वर्जीनिया, ऊपर में देख रहे हो मैं जहाँ माउस ओवर कर रहा हूँ राइट, ये देख रहे हो यहाँ पे है, ये कौन सा है, US East 1 रीजन है, ठीक है, और मैं US East 1 के EC2 सर्विस पे हूँ, है ना, अगर मैं EC2 पे क्लिक करता हूँ तो मैं किसका US East 1 के EC2 सर्विस में, हर अपने रीजन का अपना EC2 है ना, इसके डैशबोर्ड में नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के EC2 डैशबोर्ड में मेरा ये की पेयर है राइट, तो आई कैन आइडेंटिफाई से दैट दिस इज माय US East 1 रीजन। लेकिन अगर मैं ये रीजन चेंज करूंगा, मान लो ओहियो पे जाता हूँ, देयर आर एनी कीज इन दिस रीजन, ओहियो में देखो ब्लैंक है, यस। तो एवरी रीजन हैव देयर ऑन की पेयर। अगर आप अलग रीजन दे रहे हो और की किसी और रीजन का दे रहे हो तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, फेल होगा, आपको बताएगा कि नहीं मिला उसको की पेयर, ठीक है। ओके तो अभी हमने AMI कॉपी किया था, लेट मी पेस्ट दैट AMI, I hope I have copied the correct AMI। और वो दीपक, वो प्रोफाइल डिफॉल्ट लिया है आपने, हम्म, तो उसका वो कैसे आइडेंटिफाई किया? इफ यू रिमेम्बर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले फाइल दिखाई थी, होम EC2 यूजर राइट क्रेडेंशियल फाइल कैट करके, यस यस। तो उसमें जो प्रोफाइल था वो क्या था, डिफॉल्ट। तो वैसे आप अगर 4 या 5 अकाउंट आपके अलग अलग हैं तो हर किसी का अलग अलग प्रोफाइल नेम हो सकता है ना, तो आप अलग अलग एंट्री डालोगे प्रोफाइल नेम। ओके ओके, तो वो फाइल से उसको दिखने के लिए। हाँ वो ये जो वैल्यू है वो रीड करेगा कि राइट इस सर। फाइल में जाएगा, यहाँ पे डिफॉल्ट प्रोफाइल से यूज करेगा क्रेडेंशियल, ठीक है, ऐसे। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? यस। तो ये जो देख रहे हो ये जो फाइल है जो मैंने खोला है ये है ना, ये क्रेडेंशियल का डिफॉल्ट सेक्शन है। वैसे अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट पे आप काम कर रहे हैं तो अलग अलग सेक्शंस होंगे, जैसे एक डिफॉल्ट है तो उसका अकाउंट नेम बेसिस आपके सेक्शंस होंगे। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? हेलो, Yes. परफेक्ट। Now I have created this file, variable tf. Now I have to create main.tf। कुछ नए वर्जन को लेकर कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो चेंजेस करने पड़ते हैं, ओके।
तो चेंजेस क्या है इन टर्म्स ऑफ बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी, वो आपको वार्निंग ही देंगे अगर लेटेस्ट वर्जन में गए, बट स्टिल वी नीड टू नो राइट लेटेस्ट वर्जन में क्या है और क्या चेंजेस आएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा अभी। हाँ, तो ये मेरा प्रोवाइडर वाला फाइल है, ये पूरा का पूरा मेन डॉट टिफ, मैं पूरा उठाता हूँ इसको, माय बैड, तो सी यहाँ तक कॉपी करना होगा, या मैं इधर इंसर्ट मोड, सबसे पहले जो ये वेरिएबल माई एम आई ये जो टाइप है राइट, ये अगर आप डबल कोट में दोगे तो आपको वार्निंग देगा, फेल नहीं होगा बट आपको वार्निंग देगा, तो दे आर सेइंग राइट नाउ यू कैन यूज विदाउट डबल कोट्स आल्सो, ठीक है। तो मैं इसको डबल कोट हटा देता हूँ। दूसरा, इवन द वेरिएबल नेम्स राइट दैट यू आर यूजिंग, पहले का सिंटेक्स था डॉलर कर्ली ब्रेसेस में वेरिएबल इंटरपोलेट करना, अभी नहीं है, अभी यू कैन सिंपली यूज var डॉट रीजन राइट विदाउट यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। बट अगर आप टेराफॉर्म वर्जन 11.0 और राइट उसके नीचे का वर्जन यूज करें, देन यू हैव टू यूज दैट दिस वे। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका चलेगा नहीं कोड, क्योंकि उनको इस तरह से ही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो ये चीज बस ध्यान रखना है आपको। तो जनरली आपको वर्जन स्पेसिफिक एरर वो बता देता है जब आप रन करते हो, आपका टेराफॉर्म राइट इनिट रन करते हो, तो एक तरह का वैलिडेशन करता है वो, और वैलिडेशन करके आपको बता देता है, जैसे लिंटिंग जो रहते हैं ना हर टूल्स के, तो वैसे ही टेराफॉर्म इनिट प्लान ये सब कैच कर लेते हैं। सिमिलरली ये लुकअप के साथ भी वही है, तो लुकअप की डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो राइट विदाउट यूजिंग राइट कर्ली ब्रेसेस and here I will be using my variable name right rather than hard coding। तो हमने क्या लिखा है var dot की नेम ना, यहाँ पे मैंने हार्ड कोड किया हुआ था var डॉट, मैं क्या करूँगा, मैंने क्या डिफाइन किया की अंडरस्कोर नेम, परफेक्ट, ये मेरा की नेम हो गया। और T2 माइक्रो मैं T2 माइक्रो मशीन करना चाहता हूँ और मैं टैग देना चाहता हूँ इथेन्स लैब जो मेरा मशीन बने, आई थिंक दैट्स इट। सो नाउ वी आर गुड विथ आवर राइट चेंजेस इन द कोड आल्सो। ये क्या है ऊपर में जो वेरिएबल्स जो हमने किया वो क्या क्या इनिशियलाइजेशन है ना, क्योंकि हम टीएफ वॉर जो टीएफ वॉर्स करके फाइल है उससे ले रहे हैं, तो हम बता रहे हैं ये वेरिएबल्स हैं, टेराफॉर्म को बता रहे हैं कि जो फाइल से लिया है ये जो नाम आ रहे हैं क्या वेरिएबल्स है और इनकी वैल्यू अभी क्या है नल सेट की हुई है। और जब हम var डॉट रीजन करेंगे तो बेसिकली जो हमने वॉर फाइल पास करेंगे कमांड लाइन में रन करते उसके अंदर से वो रीजन की वैल्यू उठा के लाके इस रीजन को वेरिएबल को देगा, ठीक है। नाउ आई एम सेविंग दिस। Now let's start running our right commands। तो सबसे पहला कमांड, पहले तो ls माइनस LTRA करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी कुछ है नहीं विदाउट दिस राइट, हिडन फाइल्स भी कुछ नहीं, क्योंकि हमें कुछ हिडन फाइल्स बनेंगे। अभी सिर्फ दो ही फाइल है राइट, main.tf1 variable.tf नाउ आई विल रन terraform init। देख लो क्या किया इसने, अगर देखोगे इनिशियलाइजिंग द बैकएंड, और बोल रहा है आपका जो प्लगइन है राइट AWS का वो हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि आपने प्रोवाइडर AWS डिफाइन किया हुआ है, तो हम डाल रहे हैं। तो उसने लिख रहा है नेट ने, अब अगर मैं ls माइनस LTRA करूंगा तो आपको दिखेगा वो, देख रहे हो एक टेराफॉर्म करके फोल्डर बनाया राइट हिडन फोल्डर। अभी इसी को हम आगे देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, टेराफॉर्म providers register terraform HashiCorp AWS this version right and this is right the file। so ये जो है ये आपका एक्चुअली प्लगइन डिफाइन किया है टेराफॉर्म प्रोवाइडर का, वो लेकर आया है और इसके थ्रू इट विल एबल टू राइट कम्युनिकेट और यूज APIs राइट टू इंटरेक्ट विद द रिसोर्सेज राइट ऑफ द AWS। क्लियर गाइस, ये पर्पस ऑफ टेराफॉर्म इनिट प्लगइन लाके आपको दे रहा है राइट, सो दैट टेराफॉर्म कोर कैन कम्युनिकेट विद द प्रोवाइडर। Now let's run the plan। ऑब्वियसली प्लान से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या बताएगा वो,
अभी हम लोग कौन से डे 0 पे है ना, अगर देखा जाए तो, यस और नो गाइस? क्या ये इंस्टेंस है वहां पे जो हम बनाने जा रहे हैं? नहीं है, राइट? हम पहली बार प्रोविजन करने जा रहे हैं इथेंस लैब्स नाम का एक इंस्टेंस ऑफ व्हाटएवर कॉन्फ़िगरेशन वी हैव पास। अभी मैंने रन किया, देखो ये क्या बता रहा है। अगर ऊपर से हम इस कमांड के इसको स्टडी करें तो सबसे पहले इसने बोला Terraform used to select providers to generate the following execution plan. Resource actions are indicated with the following symbols. मतलब प्लस साइन का मतलब है create। अभी आपको यहाँ पे ना रिफ्रेश नहीं दिख रहा होगा। जनरली जब हम नेक्स्ट टाइम रन करेंगे तो हमें दिखेगा रिफ्रेश करके उस स्टेट फाइल, क्योंकि कोई स्टेट फाइल है नहीं, राइट? इट इज डे 0 एग्जीक्यूशन। तो ये बता रहा है Terraform will perform the following action। क्या क्या करेगा? एक रिसोर्स में AWS इंस्टेंस है, ये AMI को लेकर बनाएगा, इसको एक ARN मिलेगा, जब वो अप्लाई होगा तब ये क्रिएट होंगे। तो ये जो जो चीजें हैं प्लस, ये सब क्या होने वाली हैं? बनने वाली हैं, ठीक है? ये जो जितने भी प्लस है, राइट, दिस आर द राइट कंपोनेंट ऑफ द रिसोर्स व्हिच आर गोइंग टू गेट क्रिएटेड। एवरीवन क्लियर और नॉट? इसने बनाया नहीं, इसने क्या किया? सिर्फ बताया कि क्या बनने वाला है। Terraform अप्लाई से क्या होगा? वो बनेगा। एवरीवन क्लियर गाइस? जो हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा था उसे कोरिलेट कर पा रहे हो? So Deepak, it means this is our desired state, right? This is our desired state, right? And there is no real world currently, Yes. so And there is there- no comparison. Yes. Comparison will come in picture, ठीक है? अभी जब मैंने Terraform क्लान किया और उसके बाद मैंने ls-ltra किया, सी फाइल स्टेट्स आर वेरी सिमिलर, राइट? जैसा है। अभी हम जब अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है। दीपक, ये जो वॉर फाइल आप एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहे हो ना रन करते समय, वो हम लोग डायरेक्ट फाइल में भी दे सकते हैं ना मेंशन करके? बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने बोला, देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस। जरूरी नहीं कि हमें ना फाइल पास करने की जरूरत भी नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डिफॉल्ट वेरिएबल फाइल कॉल्ड variables.tf। अगर आपने वो डिफाइन करके वेरिएबल डाला है तो आपको पास करने की जरूरत नहीं है। जब अप्लाई करोगे तो variable.tf से अपने आप उठाएगा आपका main.tf में, ठीक है? जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वीपीसी का, हम उसमें वही अप्रोच यूज करेंगे। बट आई जस्ट वांट टू शो यू देयर कुड बी डिफरेंट अप्रोचेस आल्सो, है ना? हम अपना अलग से मेंटेन करना चाहते हैं वेरिएबल फाइल, राइट? डिफॉल्ट वेरिएबल फाइल नहीं यूज करना चाहते, राइट? एक एक्सप्लिसिटली अलग फाइल भी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये काम आएगा आपको ये, ठीक है? वेर फाइल फ्लैग। ओके, नाउ अभी देखो मैंने जब ये रन किया तो मेरे को पूछ रहा है वो कि ऊपर में जो चेंजेस हैं वो आपको चाहिए क्या, राइट? तो ही आप राइट करेंगे अप्रूव, राइट? करके ये समझ में आया? ये क्या है? एक तरह का अप्रूवल वेट कर रहा है ना। मैं जब यहाँ पे बोलूंगा कि यस तो आगे जाके करेगा। तो आप लोग के लिए एक तरह का असाइनमेंट है, अगर मैं नहीं चाहता, मैं ऑटो अप्रूव करना चाहता हूँ तो कैसे करूंगा? उसके लिए एनवायरनमेंट वेरिएबल से डिक्लेयर करके वो फ्लैग हटा सकते हैं ना? That's true also, or there is a command line flag also, right? Just search what would be the command line flag जो रन करते कमांड रन करते वक्त ही आप पास कर सकते हो, ठीक है? ये असाइनमेंट है सबके लिए, कुछ नहीं है, आप कर लोगे, मुझे पता है। कोई ढूंढना है आपको बस। मैं अभी इंटर वैल्यू कर रहा हूँ, यस। नाउ सी इट स्टार्टेड राइट क्रिएटिंग। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, हमारे रीजन में जाते हैं। देखो पेंडिंग में कुछ आया और इथेंस लैब्स नाम का टैग का। Able to see guys this? Yes. This is launched by what? Our provisioning code। अभी इसको अगर आप देखोगे तो इसमें हमने Ubuntu का AMI यूज किया था। देखो ये Ubuntu का AMI है ना, जो हमने यूज किया था उस बेसिस पे इसने बनाया। So now it is in running state। Now say मैंने अभी चेंज किया, अब चेंज करेंगे। अभी मैं यहाँ पे जाके देख रहा हूँ तो एक terraform.tf स्टेट फाइल है, ये देख रहे हो? ये दिस इज द स्टेट फाइल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये कहाँ बना है? अभी लोकली बना है। इट इज अ लोकल terraform.tf स्टेट फाइल,
Now there is something called what? Terraform backend. So Terraform backends, right, in which, right, in your code, you have to define something like this. Let me give you an example, S3 वाला. Generally आप जब जाओगे तो S3 का ही generally आप देखोगे. तो आपके आपके कोड में एक बैकएंड डिफाइन करना पड़ेगा, बैकएंड S3. वो बकेट नेम जो जहाँ पे आपको आपका स्टेट फाइल कैप्चर करना है और किस रीजन में वो रहेगा, ठीक है. सो दैट इफ दिस कोड इज इन राइट योर कोड, so for everyone there would be a common location, right, for the tf state file. Understood guys, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ अभी? Yes. So S3 is a standard backend, right? And there are two type of right backends. Local, आप एक किसी लोकल पाथ पे स्टोर करके रखना चाहते हो जहाँ पे आप टेराफॉर्म सर्वर रखते हो, सबके लिए वो राइट पाथ कॉमन हो. एक तो ये तरीका है, ठीक है. दूसरा एक रिमोट, ठीक है. एंड रिमोट में बेसिकली दिस आर द कमांड राइट व्हिच विल गेट सपोर्टेड. तो उसमें आपको दीपक, ये जो S3 बैकएंड होता है ये भी रिमोट बैकएंड का ही ये है ना, काइंड ऑफ? या इट इज अ स्टैंडर्ड रिमोट बैकएंड. रिमोट मींस लोकली नहीं रख के, ये लोकल नहीं कहीं रखे, तो भी हमने रखे. कहीं पे रिमोट राइट रखा हुआ है ना. S3 एक कॉमन प्लेस हो गया, बट वो रिमोट है सबके लिए ना. हर किसी के डेस्कटॉप में नहीं है या हर किसी के राइट डिस्क में नहीं है, राइट. ये कहीं कॉमन लोकेशन पे तो सबके लिए रिमोट है, करेक्ट. ओके. तो बेसिकली these are the good right documentation that you can also go through and learn. Now देखो, मैंने जब आपको रिसोर्सेज बताया था तो मैंने डाटा सोर्सेज भी बताया था. तो डाटा सोर्सेज क्या है? आपने ये डाटा सोर्स डिफाइन किया, AWS AMI एग्जांपल इसमें आपने पास किया, जो मैंने डायरेक्टली कोड में पास किया. मैंने क्या किया, एक डाटा सोर्स बनाया कि AWS AMI कैसे फेच करना है. और ये जो इंफॉर्मेशन है क्या करेगा, एक AWS AMI फेच करेगा as per your right tags and everything, and will give an output, and then you can consume this right data source in your actual code. तो यहाँ पे अगर एग्जांपल दिया होगा तो बेटर है. हाँ, जैसे ये AWS AMI है, इसने एक वेब नाम का राइट एक डाटा सोर्स बनाया, ठीक है. फिल्टर डाला कि इसका स्टेट और वैल्यूज अवेलेबल होना चाहिए, और फिल्टर क्या है, टैग कंपोनेंट इसका वेब होना चाहिए. अगर वेब नाम का टैग है तो वो वाला AWS AMI मुझे उठाना है, ठीक है. और सबसे रिसेंट वाला उठाना है. ये आपको एक AMI निकाल के देगा, राइट, डाटा सोर्स. अब नाउ सी आई एम यूजिंग दैट डाटा सोर्स व्हिच आई हैव डिफाइंड, and I'm using in my main resource code data.awsami.web.id. तो AWS AMI with the reference name है ना .web. ऐसे AWS AMI नाम के बहुत हो सकते हैं ना, वेब डाटाबेस ऐसे बहुत हो सकते हैं. तो AWS AMI.web और उसका क्या ID. तो वो जो ID कहाँ से मिल रहा है, ये कैलकुलेट करके लाके आपको दे रहा है ये डाटा सोर्स. आप वो ID क्या कर रहे हो, AMI. तो ऑब्वियसली इट इज एन ऑटोमेटेड, कंप्लीट ऑटोमेटेड वे ऑफ फेचिंग AMI, करेक्ट है ना. आपके पास ऑलरेडी आपके ऑर्गेनाइजेशन पे AMI आते रहते राइट, बेक्ड इमेजेस आते रहते हैं और टैग होते रहते हैं. तो आपको हर बार जाके कोड में एक AMI चेंज करने की जरूरत नहीं है. आपने एक डाटा सोर्स लिख दिया, वो डाटा सोर्स क्या करता है, हमेशा फैच करता है लेटेस्ट वाला जो भी राइट लेटेस्ट है. आप AMI ID वैल्यू कैलकुलेट करता है, एंड when you define this data source you can use in your code right to fetch that ID and right supply to your AWS instance to create. Is this clear guys, मैं जो बोल रहा हूँ? नहीं आया तो पूछो. फिर से एक बार बताऊं दीपक. एक बार दिखाना. हाँ, जैसे कि इसको मैं अगर इन अ डिफरेंट वे बताऊं तो मेरा एक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि कोड है जो कि टाइम जोन बेसिस पे काम करना चाहिए, ठीक है. किस बेसिस में काम करना चाहिए, टाइम जोन बेसिस पे काम करना चाहिए. अगर मैंने अपने कॉन्फ़िग में लिखा हुआ है IST, तो मेरा कोड हमेशा क्या कर रहा है, IST पे ही काम करेगा. यस और नो? कॉन्फ़िगरेशन मैंने हार्ड कोड किया हुआ IST, तो IST टाइम जोन के लिए काम करेगा मेरा कोड. यस और नो? हाँ या ना पहले बताओ. नो, आई वांट टू मेक इट मोर ऑटोमेटेड. ये जो IST वो कैलकुलेट करके आए, कैसे कैलकुलेट हो, वो आइडेंटिफाई करे कि वो किस लोकेशन पे है.
लोकेशन से मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ ये IST वाला लोकेशन है कि राइट CST है या वट एवर राइट है। तो ऑब्वियसली मैं कोड लिखूंगा, जब भी मेरे को मेरा कोड रन करना होगा तो मैं अपना कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करूंगा। तो कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करने के लिए क्या करूंगा, मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है विच विल कैलकुलेट द करंट टाइम जोन। तो करंट टाइम जोन निकालेगा और कॉन्फ़िगरेशन में सेट करेगा और उसके बाद मेरा कोड चलेगा एज पर द टाइम जोन, है ना। ये ऑटोमेट किया मैंने कुछ, यस और नो, यस और नो। यस दीपक। सिमिलर वे अब ये सोचो कि मैं जब भी अपना कोड इंस्टेंस क्रिएट करूं, मुझे चाहिए कि मेरा जो AMI है वेब का वो एक स्पेसिफिक राइट AMI कैलकुलेट होना चाहिए जिसका टैगिंग वेब होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑटोमेटेड कोड लिखा है कि जो मुझे कैलकुलेट करके उस राइट वेब नाम का जो लेटेस्ट AMI आईडी है वो मुझे फेच करके देगा। ये कोड वही ऑटोमेशन है जो आपको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है द लेटेस्ट AMI आईडी विद अ वेब टैग। ये आपको कैलकुलेट करके दे रहा है और आप ये ऑटोमेशन आपके रिसोर्स कोड में यूज कर रहे हो। सिंपल वो डाटा सोर्स को कॉल कर रहे हो AWS AMI वेब, राइट। ये आपका डेटा है, आपने डेटा के अंदर का AWS AMI वेब करके कैलकुलेट किया। ये जो वेब है ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक आईडी। आप उसका आईडी बेसिकली क्या कर रहे हो, फैच कर रहे हो। तो ये पूरा आपका एक ऑटोमेशन रन हो रहा है, यहाँ पे कोड रन हो रहा है ये पार्ट। और जो आईडी लाके आपको क्या रहा है, AMI आईडी दे रहा है जो कि इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए काम आता है। अभी हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या किया है, हार्ड कोड किया हुआ है, राइट। हमने AMI आईडी कॉपी करके डाला हुआ है ना, एक एग्जैक्ट AMI आईडी। यहाँ पे क्या कर रहा है, अपने आप ही कैलकुलेट करके लाके देगा जिसका राइट AMI का टैग वेब है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। कोई डाटा सोर्स बोलेगा तो डाटा सोर्स इज राइट वट एवर रिसोर्सेज नीड्स तो राइट टू। यहाँ पे डेटा सोर्स में हम इंस्टेंस टाइप भी ले सकते हैं ना? हाँ इंस्टेंस टाइप ले सकते हैं हम, ये क्या बोलते हैं उसके की जो की है राइट, की पेयर है वो ले सकते हैं। वो बहुत सारे डाटा सोर्सेस राइट राइट करके वो सारे को हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोड देखोगे तो इसमें मैंने जो जो यूज किया है, मेरे को क्या क्या चाहिए था, AMI, की नेम, इंस्टेंस टाइप, टैग, ये सारी चीजें मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ राइट यूजिंग डाटा सोर्स। की नेम कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, देयर वुड बी अ मॉड्यूल कॉल्ड की नेम, कुछ रहेगा राइट। मैं डाटा की नेम करूंगा और वहां पे जाके उस रीजन में जो भी जो की है अगर वो मेरा इस नाम से मैच करता है या इस नाम से स्टार्ट होता है तो मैं उस तरह से एक राइट डाटा सोर्स लिख के वो फेच करके लाके दूंगा। यस और नो, दैट इज व्हाट द ऑटोमेशन इज ना। परफेक्ट। अभी हम एक और चीज करते हैं। अभी हमने टेराफॉर्म बैकएंड के बारे में समझा और डाटा सोर्सेस के बारे में समझा विच आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ राइट एस्पेक्ट, इन टर्म्स ऑफ knowing the use case, right? Because in interview they might ask you, and therefore right I was right saying you, so इसको ध्यान से नोट डाउन कर लो, Terraform backend और Terraform data source। और I want right uh, identify one example in which right you will use data source। ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको, मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा अभी Terraform के एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो आप कर सकते हैं जहाँ पे यूज होगा, लेकिन उसको यूज करके देखो। यूज करोगे आपको समझ में आएगा। कोई ऐसे अलग चीज नहीं है कि मतलब भाई उसके मतलब विदाउट राइट एकदम हैंड होल्डिंग के साथ ही हो पाएगा, ऐसा नहीं है। आप ट्राई मारो, ट्राई करो, 110% हो जाएगा, ठीक है। नाउ मेरे को दिखाना था चेंज बिहेवियर राइट, टेराफॉर्म प्लान में जैसे रिफ्रेश होता है तो कैसे हो सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज माय कोड। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा डिजायर स्टेट चेंज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल बेसिक तरीका ये है कि मैं इसका नेम चेंज कर दूँ। इथेंस लैब्स की जगह मुझे बनाना है EC2, ऐसा कुछ देना है मुझे, ठीक है। मैंने सेव किया। टेराफॉर्म इंट करने की दोबारा जरूरत नहीं है, एक बार वन टाइम करते हैं। टेराफॉर्म प्लान हम रन करेंगे। अभी आप देखना, देख रहे हो ये लाइन क्या लिखा हुआ है,
इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है यहाँ पे? रिफ्रेशिंग स्टेट। रिफ्रेशिंग स्टेट, मतलब कहीं ना कहीं से उसने स्टेट फाइल को यूज किया जो लोकल था और उनके बीच में कंपैरिजन किया, तो उसने बोला कि देयर इज एन अपडेट राइट विच इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे उसने आइडेंटिफाई किया कि क्या होना चाहिए, इथेन स्लैब्स जो था टैग, नाउ इट्स गोइंग टू चेंज टू राइट अंडरस्कोर EC2। करेक्ट और नॉट? फॉर विच आईडी? द सेम इंस्टेंस आईडी दैट यू हैव क्रिएटेड। उसने आइडेंटिफाई किया आपके टेराफॉर्म में कि एक इंस्टेंस आईडी जिसका टैग नेम चेंज करना है। एंड बाकी 28 अनचेंज एट्रीब्यूट्स हिडन, बाकी सारों को उसने क्या किया, हाइड किया, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है, तो उसको वो अफेक्ट नहीं करेगा। लाइक AMI टाइप, है ना? अगर मैं AMI चेंज करता तो क्या होता? सबसे पहले तो वो क्या करता है, उस इंस्टेंस को टर्मिनेट करता और फिर वापस से नए AMI आईडी से बनाता, राइट? दिस इज द राइट बिहेवियर दैट टेराफॉर्म थिंग्स। नाउ अभी तो मैंने टेराफॉर्म प्लान किया, अभी मैं इसको क्या करूंगा, अप्लाई कर दूंगा एंड वी विल सी राइट दैट चेंज विल हैपन। तो मॉडिफाइंग आ रहा है राइट, एंड मॉडिफाई हो गया। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ इंस्टेंस पे, रिफ्रेश करता हूँ, सी हो गया। So you can see right now, I want to show you this Terraform state file. Beam is not with me. BI. तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन है राइट कि क्या राइट रिसोर्सेज क्या यूज हुए राइट, कैसे क्या चीजें हैं, सारी डिटेल्स जो वहाँ पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में बना प्रोविजन हुआ उसकी A to Z डिटेल्स यहाँ पे, जिससे वो आइडेंटिफाई करता है राइट रियल वर्ल्ड और राइट डिजायर स्टेट के बीच में डिफरेंस। दिस इज विच इज मेंटेन इन दिस TF state file. Okay, now coming to the destroy command, it is so easy here right because it has all the information already right कि इंस्टेंस आईडी, आपको अलग से कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिंपल क्या कमांड रन करना है, terraform destroy and see what happens, क्लीन अप कर देगा। बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस terraform state file, रिफ्रेश किया उसने, देखा कि ओके ये सारी चीजें थी स्टेट फाइल में, ये सारी चीजें उड़ानी है राइट, डिस्ट्रॉय कर देगा ये। मैं बोलूंगा यस मुझे उड़ाना है एंड यू विल सी राइट टर्मिनेट एक्शन विल स्टार्ट हैपनिंग हियर, setting up. So if you see the performance wise also right, Terraform is much right faster because it is using right Go code, and Go is right in terms of right performance much better than right Python, which is used by Ansible. I hope दीपक ये डिस्ट्रॉय मतलब टर्मिनेट कर देगा या सिर्फ शट डाउन करेगा? it is terminate basically, right? So one of the phase right is shutting down. It actually it will terminate it. It is actually going to get terminated, not shut down. ठीक है? Anything else, guys? Okay. So I would suggest आज का ये वाला जो Terraform installation right configuration और right एक launch का example तो मैंने दिखाया, but you can go ahead and right do further. So where right, go to Terraform tutorials, Terraform की साइट पे, ठीक है, और कहीं नहीं। यहाँ पे सबके दिए हुए हैं, आपको अगर AWS से इंटरेस्टेड है तो ये ठीक है, यहाँ पे जा सकते हो। इसके लैब्स भी आई हैव टू शो यू, यूज केसेस, this one right. So IAM policies right, serverless application using Lambda, 16 minute का lab है, 6 minute का lab है right, do them right, start doing them, hosting a static website with S3 cloud right, ये सब चीजें करो, ये आपको राइट काफी राइट फंडामेंटली देंगे। तो if you go here and see right every information right in terms of code and everything is there, you have to understand the config file कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, क्या रिसोर्सेज डिफाइन किए हुए हैं। ये लेटेस्ट वर्जन है तो लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से प्रोवाइडर की राइट जो फाइल है राइट उसमें कुछ चेंजेस होंगे, तो ये सब चीज़ें आप
देखो, थोड़ा समझो क्या कर रहा है, राइट, एंड देन स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग देम, ठीक है। तो थोड़ा सा रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एग्जीक्यूशन, right. Reading should be concentrated reading. So at that time when you are reading, you don't divert yourself, right, with any other factors कि मेरे को वो देखना है पहले। तो अभी जो चीज आप पढ़ रहे हो उस स्पेसिफिक चीज के बारे में, राइट, उस समय कंसंट्रेट करके देखो और उसके बारे में ही सोचो, तो वो आपको ज्यादा हेल्पफुल करेगा। So this is how, right, you have to, right, go and you have to follow all this, right, examples, तो आपको हेल्प करेगा। तो आप यहाँ से भी करना, मेरे जो लैब है उसको तो करना ही करना, ठीक है। और ये जो इन्होंने दिए हुए लैब, राइट, इनको करो, इससे आपको और भी थोड़ा सा अच्छा नॉलेज मिलेगा। एंड टेक सम एग्जांपल, राइट। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको टेराफॉर्म बैकएंड करना है, ठीक है, तो सिंपल मारो टेराफॉर्म बैकएंड एग्जांपल AWS, ठीक है, ऐसा करो। और किसी भी राइट इसका AWS का लेना है तो AWS का ले लो, आपको बहुत सारे लोगों के, राइट, ऐसे कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे जो आप मतलब जस्ट कॉपी करके उसको रन करोगे तो भी आपका मतलब बेसिकली, राइट, रन हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा। उसका चेंजेस आप जाके S3 बकेट में जाके चेक करोगे कि हाँ मैंने जो रन किया वहाँ पे चेंज हुआ कि नहीं हुआ, वो सब चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। So this is, right, one of the example, right, which basically you can use, right. This is, right, a usage statum provider and S3 bucket ID और dynamo table दोनों के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हो कि आपका बैकएंड में वो बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। आप प्रोवाइडर करके आप सेम मेरा इंस्टेंस वाला कोड, राइट, डाल लो, इंस्टेंस क्रिएशन वाला कोड डाल लो और ये जो एग्जांपल है उसको रन करो, इसके प्रोवाइडर में रिसोर्सेस मेरा वाला डाल लो, ठीक है। देन इट विल स्टार्ट, राइट, वर्किंग फॉर यू। तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों है, ये जो मॉड्यूल है, राइट, ये क्या है, क्यों यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे इसने जनरली एक मॉड्यूल बनाया टेराफॉर्म स्टेट बैकएंड करके, और वो टेराफॉर्म स्टेट बैकएंड एक्चुअली क्या कर रहा है, टेराफॉर्म बैकएंड यूज कर रहा है, मतलब एट द बिहाइंड द सीन, राइट, वो मॉड्यूल टेराफॉर्म बैकएंड यूज कर रहा है। तो इसके अगर कोड में जाओगे तो उसने अपना खुद का टेराफॉर्म बैकएंड बनाया हुआ है। So this is where, right, you will add value to it, right? So you can take a different example. If you, right, still struggling कि नहीं मिल रहा है, right, let me know. I'm going to give you more example. But first, get hold on in terms of understanding what is Terraform backend, right, and how you will use Terraform, right, backend in your the code that I have given. उसी में, right, Terraform backend use करके मुझे दिखाओ, ठीक है। Take that as a challenge. Let me know. And when you will do, you will come and tell me, अरे कुछ भी नहीं था, वो बस एक सेक्शन डालना था और उससे मेरा काम बन गया, ठीक है। हेलो एवरीवन। यस दीपक। तो कल हम लोग VPC का करेंगे, राइट, VPC का लैब करेंगे। एंड आई वांट समवन हु वांट टू, राइट, वॉलंटियर टू शो टेराफॉर्म बैकएंड। अगर दिखाना चाहते हो तो प्लीज करके बताना। आई वुड से इट्स गुड टू डू दैट, ठीक है। लर्निंग तो क्या है, हो जाएगा, आप कुछ है नहीं। अगर आप करो थोड़ा सा आजकल लैब ही करोगे और उस पर टेराफॉर्म बैकएंड ट्राई करोगे तो हार्डली 5 मिनट्स का एफर्ट है, 5 मिनट उसके ऊपर डालना है आपको टेराफॉर्म बैकएंड इंक्लूड करने के, ठीक है। ओके everyone, then, right, I will close the session now, and we will meet, right, tomorrow. Yes, वीडियो अपलोड कर। yeah, I will, yeah, okay, thanks everyone, bye.